خواتین حضرات السلام علیکم اور رات گئے کی ایک اور نشست میں آپ کو خوش آمدید۔ جناب مبین مرزا نے اپنے حالیہ کالم ادب اور ہمارے عہد کے سوال میں ایک بڑا ہی دلچسپ نقطہ اٹھایا ہے۔ آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہر عہد کے ادب کو ایک بنیادی سوال کا سامنا ہوتا ہے، اور یہ سوال اس عہد کا بدلتا ہوا تہذیبی، ثقافتی، اخلاقی معیار طے کرتا ہے جو معاشرتی رنگ ہیں۔ اسی سوال کے تحت اس عہد کے ادب کا مزاج طے ہوتا ہے اور اس کے رویے تشکیل پاتے ہیں۔ تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج کے عہد کا وہ کیا سوال ہے جو ہمارے عہد کے ادب کو درپیش ہے۔ بات کی کڑی کیسے شور و شر سے جا کے الجھ جاتی ہے، مکالمہ نعرے سے ہوتا ہوا دشنام اور پھر چیخوں میں کیسے ڈھل جاتا ہے۔ فی زمانہ شعر کیا خیال کی پرواز کا نام ہے یا سوچ کی پستی کا؟ شاعری حسب ہدایت ہو رہی ہے یا بھی نعرہ مستانہ ہے؟ اور جو حرف کے نئے بخیا گر ہیں وہ دامن اردو میں کیا چاند تارے کاٹ رہے ہیں یا پاپوش میں کرن آفتاب کی لگ رہی ہے؟ خواتین حضرات، یہ سوال اور ہماری آج کی نشست، اور ان کے جواب مانگنے کے لیے دو شخصیات ایسی ہیں کہ جو اپنے لہجے کی پختگی میں بھی بہت تازہ ہیں۔ آپ کی ملاقات ان سے ہوگی، اور آپ یہ جانتے ہیں کہ رات گئے کی نشست مکمل نہیں ہوتی ہے کہ اگر اس میں شعر و نغمگی نہ ہو۔ آج آپ کی ملاقات ایک بہت ہی کھنکتے ہوئے اور تازہ لہجے سے بھی ہوگی، لیکن یہ سب کچھ ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ خواتین حضرات، رات گئے کی نشست میں باضابطہ خوش آمدید۔ وقفے پہ جانے سے پہلے میں نے آپ کے سامنے جو مدعا رکھا تھا وہ یہ کہ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ آج کے عہد کے ادب کو کیا سوال درپیش ہے، اور جو شعر لکھا جا رہا ہے کیا وہ خیال کی پرواز ہے یا سوچ کی پستی ہے۔ نئے لکھنے والے زبان اردو کے دامن کو وسیع کر رہے ہیں یا اس کو آلودہ کر رہے ہیں۔ جو شعر کہا جا رہا ہے وہ شعر کیا نئے مضامین اور نئے خیالات کو شامل کر رہا ہے یا ہم شاید کہیں کوہلو کے بیل ہیں؟ اور ان سوالوں کے جواب کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ مسئلہ بڑا پیچیدہ ہے اور حساس ہے اور جان کنی کا معاملہ ہے، سو کسی ڈاکٹر سے رجوع کیجیے۔ جناب ڈاکٹر اشفاق ناصر سرجن ہیں، ڈاکٹر ہیں، علامہ اقبال میڈیکل کالج سے فارغ التحصیل ہیں۔ خدا معلوم شہر لاہور میں وہ کون پری جمال تھے کہ ڈاکٹر صاحب، مجھے نہیں معلوم کتنے اچھے ڈاکٹر ہیں، لیکن اتنے اچھے شاعر ہیں کہ ابھی حال ہی میں ان کی کتاب کی رونمائی میں جناب افتخار عارف نے کہا کہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ شاعر کی غزل میں ایک آدھ شعر کچھ کمال کا ہوتا ہے، باقی بھرتی ہوتی ہے۔ اشفاق کی غزل میں ڈھونڈنا پڑتا ہے کہ کوئی مصرع بھرتی کا ہے بھی یا نہیں۔ اشفاق، آپ کی آمد کا بہت شکریہ، اور ہم نے یہ سارا لیٹیٹیوڈ اس لیے لیا ہے کہ آپ ہمارے دوست ہیں، مزاج بخیر ہیں آپ اسلام آباد سے تشریف لائے ہیں، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ خواتین و حضرات، امبرین، محترمہ امبرین صلاح الدین، آپ انگریزی اور اردو دونوں زبانوں میں لکھتی ہیں، شاعرہ ہیں، نقاد ہیں، ماہر لسانیات ہیں، اور اتنا اچھا بولتی ہیں کہ میں نے ابھی ان سے کہا تھا آپ کو کمپیئر ہونا چاہیے، اور انہوں نے کہا میں ریڈیو کیا کرتی ہوں۔ جو لہجہ ہے
وہ ذرائع ابلاغ کا ہے، سو اس لہٰذا بہت نفعت اللہ ہے، اور ہماری خوشگمانی یہ ہے کہ جیسا لہجہ نفعت اللہ ہے ویسے ہی ان کے الفاظ بھی نفعت اللہ ہیں۔ آپ تانیسی ادب میں لکھتی ہیں اور اس حوالے سے ہم آپ سے بات کرنا چاہیں گے۔ 2004 میں آپ کی سرے دشت گماں سامنے آئی، 2014 میں صدیاں جیسے پل سامنے آئی، اور اب ہم سوچ رہے ہیں کہ 10 سال ہونے کو آئے ہیں، اب تیسرا شعری مجموعہ آ جانا چاہیے، جیسے اشفاق کا 27 سال بعد آیا۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، صدیوں جیسے پل کو 10 برس ہو جائیں گے اگلے سال، تو انشاءاللہ اگلا شعری مجموعہ آئے گا۔ خواتین حضرات، شاعر آج دونوں ہیں، سو مزاج بہت شاعرانہ ہوگا، اور اگر مزاج پروگرام کا شاعرانہ ہے تو بہت ضروری ہے کہ اس کو موسیقی کے بعد میں عاشقانہ بھی ہو جانا چاہیے۔ حضرت حر عباس ہمارے پاس آئے ہیں، آپ کا تعلق فیصل آباد سے ہے، بہت اچھا گاتے ہیں، مختلف ٹی وی چینلز کے ساتھ گا رہے ہیں، آپ فوک بھی گاتے ہیں، غزل بھی گاتے ہیں، آپ پنجابی بھی گاتے ہیں، پلے بیک سنگنگ بھی کر رہے ہیں۔ چھوٹی سی عمر میں کیا کیا کرنا چاہتے ہیں؟ سب سے پہلے تو السلام علیکم آپ کو، اور تھینک یو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا اس شو کے لیے۔ تو کوشش تو یہی ہے کہ گانے کی جتنی بھی فارمز ہیں اس میں اچھا ہی گایا جائے، تو الحمدللہ کوشش کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ اشفاق، کوئی بچھڑے تو اسے ہجر منانے دیجئے، گریہ کرتا ہے کرے گائے تو گانے دیجئے، اور ہجر کا بوجھ ہے الفاظ سے اٹھنے کا نہیں، رونے والے کو تسلی نہیں شانے دیجئے۔ حضور کا شعر ہے یہ، آپ ایسے شعر ایسے مصرے کیوں نہیں ہوتے؟ اور جس قسم کی شاعری سے ہمارا آج کل تعلق پڑا رہتا ہے، اسے نہ ہی پڑھیے تو بہتر ہے۔ میرا خیال ہے کہ شعر اور مصرے کی مضبوطی کے لیے آپ کا روایت سے جڑا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کے علم میں نہیں ہے کہ میر نے کتنا کام کیا ہے، غالب نے کتنا کام کیا ہے، ان کے بعد کے لوگوں نے، سودا نے، ذوق نے، مومن نے، پھر یہ پوری لڑی نے، پھر آج کا جو شاعر ہے اس کا جو میں نئے شاعروں میں یہ کلمیہ دیکھتا ہوں کہ اگر کسی کو کہا جائے غالب پڑھ لو تو وہ برا مناتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی غلط رستے پہ ڈال رہے ہیں۔ تو شعر کو آپ کو اپنی روایت سے جوڑنا پڑتا ہے۔ اگر آپ نے اپنے قد بڑا کرنا ہے تو آپ کی جڑیں اتنی ہی اپنی مٹی میں اپنی روایت کے ساتھ گندی ہوئی ہونی چاہیے، تبھی آپ کے قد بڑے ہو سکتے ہیں۔ نہ جانے کیوں مجھے مسلسل شرارت سوج رہی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ روایت سے جڑا ہونا چاہیے۔ 2005 میں بین الاقوامی اردو کانفرنس ہوئی، اور اس پہ ایک نشست رکھی گئی تھی جو بیٹھک کے نام سے تھی، جس میں نوجوان طلباء طالبات، وہ جو ہماری کلاسیکل شعراء اور ہمارے کلاسیکل ادیب تھے، میر امن اور اس نو کے جتنے لوگ لکھنے والے تھے، ان کی چیزیں پڑھی گئیں۔ سو اگلے روز ایک انگریزی اخبار میں یہ خبر چھپی کہ ڈیورنگ دی آفٹرنون سیشنز those prominent who spoke were Mir, Mashafi, Anis and Mir Aman. So جو آپ فرما رہے ہیں کہ انہیں روایت سے جڑا ہونا چاہیے، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم روایت شکن ہیں، ہم اپنے اوپر کوئی چھاپ لگتے ہی نہیں دیکھنا چاہتے، ہم نئے تجربات کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ غزل میں 6 سے 8 یا 12 ہوں، ہم اشرے لکھیں گے؟ اور یہ کہاں لکھا ہے کہ غزل کو پابند ہونا چاہیے، ہم آزاد کہیں گے؟ تو یہ جو آپ تو روایت سے جڑنے کی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہر ایک پنے پہ ایک نئی داستان لکھنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے نا، اشرے اگر یہاں پہ ہے تو سونٹس انگلش لٹریچر میں موجود ہیں، یہ کوئی نئی باتیں نہیں ہیں۔ اگر آپ نے کوئی وہ روایت شکنی کرنی ہے تو روایت شکنی کرنے کے بعد پھر ہمارے پاس وہ سبسٹانس ہونا چاہیے جو ہم پیش کر سکیں کہ یہ آپ کی روایت ہے اور یہ روایت شکنی اس کے مقابلے میں اتنی بڑی پڑی ہے۔ اگر وہ اتنی بڑی رکھ سکتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں اسی نقطے پہ امتین آپ سے بھی بات کرنا چاہوں گا، اگرچہ مجھے آپ سے تانیسی ادب پہ بھی بات کرنی ہے اور بہت سے ایسے شعبے جو اسپیسیفکلی آپ سے بات ہو، لیکن ابھی جب ہم تینوں بیٹھے تھے تو ہم نے ایک
طرف اشارہ کیا کہ بظاہر سوقیانہ الفاظ یا بازاری الفاظ جو مستعمل نہیں تھے تہذیب کی زبان میں، اس سے اساتذہ نے بھی باندھا، اور ہم نے میر کے شعر کو دیکھا کہ یوں کہہ کے پکارے ہیں مجھے کوچائے جانا والے، ادھر ابے او چاک گریباں والے. اب یہاں ابے او کو جس طرح سے باندھا گیا، لیکن اس کے برعکس ہم نے ابھی حال ہی میں غزل دیکھی ہے کہ جس کا قافیہ ردیف ہے کھڑاک تو ہو کے رہے گا. تو اب کس حد تک آپ لفظ کو برت سکتے ہیں اور جسے آپ انگریزی میں سلینگ کہتے ہیں، وہ کہاں تک شعر کے لہجے میں ڈھل سکتی ہے اور کیا ڈھالی جانی چاہیے؟ دیکھیں یہ بات بھی بالکل صحیح ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ روایت سے آپ کی جڑت ہونی چاہیے، اور اگر آپ روایت کی پوری سینسیبلٹی کے ساتھ پھر آگے آ کر کوئی ایسا معاملہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ آپ نے کوئی نیا تجربہ کیا یا نئے جانراز میں کوئی کام کیا، وہ ایک الگ معاملہ ہے. جہاں تک لفظوں کی بات ہے، وہ بھی اس کے ساتھ ہی ایک جڑی ہوئی بات ہے کہ آپ کیا لفظ کی نشست سے آگاہ ہیں، کہ آپ کو پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ غزل کے کچھ مخصوص لفظ ہیں، نظموں کے لفظ ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم یہ بات جو کرتے ہیں کہ غنائیت، موسیقیت اور شاعرانہ لفظوں کی بات تو ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن جیسے ظفر اقبال صاحب کا شعر ہے کہ مجھے کبڑا نہ سمجھو زندگی پر، میں ہنستے ہنستے دوہرا ہو گیا. اب کبڑا لفظ جو ہے وہ غزل کا اس طرح کا لفظ تو نظر نہیں آتا، مگر چونکہ ظفر اقبال صاحب تو آپ کو خیر پتہ ہی ہے، انہوں نے ویسے بھی تجربات بہت کیے، بہت کام کیا، اور اس ساری روایت کے سے وہ آگاہ بھی ہیں، اس پہ نظر بھی رکھتے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ یہ تو اردو زبان کا ایک لفظ ہے. جہاں تک آپ سلینگ اور جس طرح کی آپ نے مثال دی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، تو اس میں بھی معاملہ یہی ہے کہ آپ اس پوری روایت کی اس زبان کے بارے میں پوری طرح آگاہی لے کر ساتھ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں. اور ہم نے ایک بڑی اہم بات اس میں جو مس ہو جاتی ہے بار بار، وہ یہ ہے کہ یہ جو پچھلے 50 سال میں تبدیلی اور ٹرانزیشن ہوئی اور ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ ہوئی، وہ کئی صدیوں کو جو محیط ایک ٹرانزیشن تھی اس سے بہت تیزی سے ہوئی ہے. اور پھر ایک اور ڈیوائڈ بھی یہاں پہ ہم نے دیکھا، ٹھیک ہے، اور بڑے ایونٹس ہیں جو ہوتے رہے دنیا میں، لیکن یہ جو پوسٹ 9/11 کا پورا سینیریو ہے اور اس جنریشن کی سینسیبلٹی، اور پھر وہاں پہ پورا میڈیا اور سوشل میڈیا کا پورا ایک ایکسپوئر اور ایک جس کو کہتے ہیں نا انسیکیورٹی کا لفظ بھی فلوٹ کیا گیا، اور اس طرح کے بہت سے لفظ ہیں جن کے ساتھ یہ لوگ جڑے. تو اس سلسلے کو بھی ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ آخر اس کی کیا وجہ ہے، یہ جو سارا ڈسکنیکٹ ہوا تہذیب سے، روایت سے، چیزوں سے، اور کوئی اگر نیا لکھنے والا آ رہا ہے یا آ رہی ہے تو وہ کس حد تک اس روایت کو سمجھ کے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں، یا وہ ان کو یہ لگ رہا ہے کہ سوشل میڈیا پر ایک اس طرح کا ایکسپوئر جو ہے وہ آپ کو کہاں سے کہاں لے کے چلا جاتا ہے، سارا کلکس کا گیم ہے، تو اس کو ذہن میں رکھ کے وہ چل رہے ہیں یا کس چیز کو ذہن میں رکھ کے چل رہے ہیں. امرین نے بہت دلچسپ بات کی ہے اور 2 ٹریکس مجھے دیے ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ میڈیا آن سلاٹ کا دور ہے، ابلاغ کی حشر سامانی ہے، اور چشم زدن میں آپ کہیں کہ کہیں ہیں. تو ایک تو مقبولیت کے لیے اب محض چھاپا خانہ جو ہے وہ شرط نہیں ہے. اب فیس بک اور سوشل میڈیا کے بے شمار ایسے جہاں لوگ کہتے ہیں کہ اب کتاب کی ضرورت ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ آخری صدی ہے کتاب کی. لیکن ساتھ ہی انہوں نے ایک اور بات بھی کہی، وہ یہ کہ پوسٹ 9/11 میں ہوا، اور 9/11 سے مجھے یہ خیال آیا کہ صرف 9/11 نہیں بلکہ ہماری جنریشن نے ایسے ایسے حادثات دیکھے ہیں اور ایسے ایسے تجربات سے گزری ہے کہ جو نہ کبھی سوچے گئے تھے نہ سنے گئے تھے. تو اس نے تو پھر بہت سارے نئے مضمون دیے ہوں گے، اس نے تو سوچ کے کئی دریچے واہ کیے ہوں گے. وہ دریچے تو واہ نہیں ہوئے اشفاق، لیکن سوشل میڈیا کی بینڈ ویگن پہ سب چڑھ گئے. وہ میڈم نے بڑی اچھی بات کی تھی کہ جتنا روایت کے ساتھ دیکھیں آپ پورا، جیسے ظفر اقبال کی انہوں نے مثال دی کہ ان کے پاس پورا روایت کا، آپ نے اردو میں بڑھوتری کرنی ہے نا، زبان میں اضافہ کرنا ہے، خیال کے لیول پہ.
اگر آپ کو زبان پوری طرح علم ہی نہیں ہے کہ کہاں تک یہ استعمال ہو چکی ہے اور اس میں آگے کیا کیا جگہ موجود ہیں، اور وہ روایت کی خوبصورتی کے ان نئے الفاظ کو، نئے حادثات کو، نئے تجربات کو ہم کتنی خوبصورتی سے نئے شعر میں، مصرے میں ڈھال سکتے ہیں، اس کے لیے ہمارا روایت سے جڑا ہونا، اس کو پڑھنا وہ بڑا ضروری تھا. ہونا یہ چاہیے تھا کہ جیسے ہی یہ ہماری سوشل میڈیا چیزیں آئیں، گوگل آ گیا چیزیں، اب ایک کلک پہ آپ کو میر اویلیبل ہے، ایک کلک پہ آپ کو غالب اویلیبل ہے، سارے اساتذہ آپ کو ایک کلک پہ اویلیبل ہیں. لیکن ہمارا بینٹ آف مائنڈ یہ ہوا کہ جو ہم لکھ رہے ہیں نا، بس یہی حرف آخر ہے. جب تک آپ اپنے خود نقاد نہیں ہوں گے، جب تک آپ خود ڈر نہیں رہے ہوں گے کہ اس خیال کو کیا راہ حالت ہے، کیا اس کی کوئی ریفائنڈ فارم بھی ہو سکتی ہے، جب تک آپ ان ساری چیزوں کو ساتھ لے کے نہیں چلیں گے، تو میرا نہیں خیال کہ آج کا آپ وہ خیال دیتے رہیں. وہ خیال آپ نثر میں بھی دے سکتے ہیں، اس کے لیے شاعری ضروری نہیں ہے. وہ آپ کالم لکھ سکتے ہیں حالات کے بارے میں، تو وہ تو آپ کے پاس اور بہت ساری. لیکن جہاں پہ شعر موجود ہے اس میں شعریت پہلی چیز ہے کہ وہ اگر آپ نے جیسا لفظ استعمال کیا ابے اوئے، تو وہ ابے او، تو وہ اپنی پوری شعریت کے ساتھ وہاں پہ موجود ہے. تو اس لیے ہمیں وہ نیا الفاظ پورا زبان کا لگتا ہے، حالانکہ وہ گلی محلے کی زبان کا لفظ ہے، لیکن اس میں اتنی شعریت بھر کے لکھا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بن گیا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا آج کا شاعر اس شعریت سے واقف ہے کہ جس شعریت کے زور پہ وہ کسی بھی نئے لفظ کو، کسی بھی نئے تھاٹ کو، کسی بھی نئے تجربے کو، کیا اس اردو ادب کا حصہ اس خوبصورتی سے بنا سکتا ہے کہ اس کو ادب کہا جائے؟ کیا اس خوبصورتی سے بنا سکتا ہے کہ اس کو ادب کہا جائے؟ میر کو خدائے سخن اس لیے کہتے ہیں کہ میر نے زبان اردو کی شاعری کو اوج نہیں دیا، بلکہ زبان اردو کو تخلیق کیا ہے. اور اردو بہت انداز سے فرینچ کی اس روایت سے ملتی ہے کہ اس زبان میں لفظ شعر لے کے آیا ہے اور شاعری نے اس کا دامن وسیع کیا ہے. لیکن ہم اپنی نئی نسل کو کیوں الزام دیں کہ جب آپ نے فی زمانہ جو انہیں نصاب پڑھانا شروع کیا، اس میں سے جس شے کو بڑی تیزی سے آپ نے مٹایا وہ اردو زبان تھی. آسان کر دیجئے، اس کو ایک ایزی کر دیجئے. ایک زمانہ تھا کہ پورا کا پورا مرثیہ جو تھا وہ 11ویں 12ویں کے سلیبس میں تھا، اسے نکال دیا گیا. پھر جتنا کلاسیکل ادیب، شاعر اور ادیب آپ کو پڑھایا جا رہا تھا، آسان کر دیجئے، آسان کر دیجئے. بھیا پرچہ ہی پاس کرانا ہے تو پھر وہ آپ اسے نقل ہی کرا دیجئے. تو جب اس کو آپ نے وہ کنٹینر ہی نہیں دیا، اسے زبان سے آگاہی ہی نہیں دی، تو پھر اس پہ شکوہ کیا رکھنا؟ صحیح بات. نہیں. اور آپ یہ دیکھیں، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے. مجھے یاد آیا کہ جب میں نے ایم اے کیا تو فوری طور پہ میں ایک اسکول میں پڑھانے گئی. ظاہر ہے میں اسکول کا نام تو نہیں بتاؤں گی جی، مگر انہوں نے یہ مجھے کہا کہ آپ نے کلاس میں اردو نہیں بولی. ہاں جی، آپ نے ہسٹری جغرافی پڑھانی ہے مگر اردو نہیں بولی. تو یہ جو معاملہ ہے یہ بڑا تکلیف دہ ہو جاتا ہے کہ آپ ایک زبان کو اس طرح سے، وہ بھی اپنی قومی زبان کے بارے میں، جو اپنا، جس کو آپ آئیڈینٹی یا شناخت یا تشخص کی ایک علامت کے طور پر لیتے ہیں، اور وہ آپ نے زبان جو ہے وہ استعمال نہیں کرنی ہے روزمرہ گفتگو میں. اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ماں باپ شکایت لے کے آتے ہیں کہ ہم نے انگریزی میڈیم میں بچے کو داخل کیا ہے اور آپ اس سے اردو میں بات کر رہے ہیں. سو یہ ایک ٹریجڈی ہے، یہ ایک بہت ہی بڑا المیہ ہے، اور یہ ہو رہا ہے اس طرح سے. اور پتہ نہیں ہم اپنی زبان اور قومی زبان کو چھوڑے مادری زبانوں کے حوالے سے ہم بڑے خاص طور پہ اس خطے کے لوگ بہت زیادہ احساس کمتری کا شکار ہیں، اور اس کو بولنے میں بڑا ہیزیٹینٹ ہوتے ہیں، اور یہ چل رہا ہے. لیکن وہ جو نئی نسل کی آپ شکایت اس سے ہونے کی بات کر رہے ہیں، لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ اسی نئی نسل میں ہمیں کئی دفعہ کیسا اچھا چمکتا ہوا مصرع نظر آتا ہے، کیا کیا شعر نظر آتا ہے. وہ جو کمیٹڈ لوگ ہیں
जिन्हें ये पता है कि रिवायत क्या है, जिन्हें पता है कि हम क्राफ्ट को जानेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, जो समझते हैं कि हमें किताब से को पढ़ना है और हमें अपने मासरीन को भी पढ़ना है और अपने सीनियर्स को भी पढ़ना है, तो वो भी मौजूद है यहाँ पर। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मायूस कुन भी नहीं मामलात, और ऐसे बहुत से नौजवान लड़के लड़कियाँ हमें दोनों नज़र आते हैं जो कि बहुत अच्छा शेर कह रहे हैं और सुन के बहुत खुशी होती है। मेरे सामने तो 2 ही नौजवान लड़के और लड़कियां हैं, तो पहले मैं खातून से अगर दरख्वास्त करूं कि कुछ शेर बताऊं। चलिए मैं आपको एक गज़ल सुना देती हूँ। जी। होती है जहाँ खाक से तामीर हमारी, होती है जहाँ खाक से तामीर हमारी, होती है जहाँ खाक से तामीर हमारी, बनती है उसी चाक पे जंजीर हमारी। वाह वाह, बनती है उसी चाक पे, बनती है उसी चाक पे जंजीर हमारी, हम नक्शे स्याह थे किसी दीवारे स्याह में। वाह, हम नक्शे स्याह थे किसी स्याह दीवारे स्याह में, हम नक्शे स्याह थे किसी दीवारे स्याह में, तो जांक से रोशन हुई तस्वीर हमारी। वाह, बहुत अच्छा। एक फूल का तावीज़ बना रखा है हमने, क्या क्या है? फूल का तावीज़ बना रखा है। एक फूल का तावीज़ बना रखा है हमने, हर बाग की खुशबू है खबरगीर हमारी। वाह वाह, बहुत अच्छा। हम वक्त से पहले भी पहुंच जाएं अगर घर, दस्तक से आया होती है ताख़ीर हमारी। वाह, दस्तक से आया होती है ताख़ीर, दस्तक से आया होती है ताख़ीर हमारी, उस शहर में रहते हैं किराए के मकाम में, उस शहर में रहते हैं, उस शहर में रहते हैं किराए के मकाम में, जिस शहर में मौजूद है जागीर हमारी। जागीर हमारी। क्या- वाह, क्या- बहुत क्या- अच्छा, क्या- बहुत अच्छा, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अशफाक से तो किताब सुननी है, तो उससे बहुत पहले ज़रूरी है कि मैं, क्या अच्छा मिसरा था, जिस शहर में रहती है जागीर हमारी। तो मैं खुद से अगर कहूँ कि खुद अब तुम इस पल्ले की कोई अच्छी सी हमें गा के बात सुनाओ तो फिर बात बने। मैं ज़रूर आपको नासिर काज़मी साहब की जी। गज़ल है तो मैं वो सुनाना चाहूँगा। नियते शौक भर ना जाए कहीं, नियते शौक भर ना जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियत शौक भर न जाए कहीं। आज देखा है तुझको देर के बाद, आज देखा है तुझको देर के बाद, आज का दिन गुजर न जाए कहीं, आज का दिन
गुजर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए कहीं। ना मिला कर उदास लोगों से, ना मिला कर उदास लोगों से, हुस्न तेरा बिखर न जाए, हुस्न तेरा बिखर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए कहीं। आओ कुछ देर रो ही ले नाज़, सारे मागनी गा मारे मारे नीरे सा। आओ कुछ देर रो ही ले नाज़, आओ कुछ देर रो ही ले नाज़, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, फिर ये दरिया उतर न जाए कहीं, तू भी दिल से, तू भी दिल से, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए कहीं, तू भी दिल से उतर न जाए कहीं, नियतें शौक भर न जाए कहीं। ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर खुश आमदीद। बात हो रही है नए लहजे नई गुफ्तगू क्या कर रहे हैं और फ़ी ज़माना हमारे अदब को क्या सवाल दरपेश है, शेर में क्या बात कही जा रही है और बात कही भी जा रही है या नहीं कही जा रही। और शरीक गुफ्तगू हैं जनाब डॉक्टर अशफाक नासिर और मोहतरमा अंबरीन। हम दश्त दिल को
نقش سے آباد کر سکیں، ملتے رہا کرو کہ تمہیں یاد کر سکیں. واہ اور آپ پہ الزام یہ ہے کہ آپ کی اس غزل کا دوسرا شعر شادی شدہ مردوں کا المیہ ہے کہ خود پر تو ایک عمر سے بس چل نہیں رہا، چڑیاں خرید لاؤ کہ آزاد کر سکے. سب سے پہلے تو شعر سنائیے. پھر یہ حالت تھی پھر یہ حالت تھی کہ لہجے کی تھکن تھے ہم لوگ، واہ. پھر یہ حالت تھی کہ لہجے کی تھکن تھے ہم لوگ، دل میں کانٹے کی طرح ایک چبھن تھے ہم لوگ. واہ. دل میں کانٹے کی طرح ایک چبھن تھے ہم لوگ. جن کے ہاتھ آئے ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں، واہ واہ. جن جن کے ہاتھ آئے ہیں ان کو تو کوئی فکر نہیں. جو گنوا بیٹھے ہیں کہتے ہیں کہ دھن تھے ہم. واہ واہ، واہ بہت واہ واہ واہ. بہت عمدہ. صحنے دل میں ہے کسی حسرت ناکام کی قبر، واہ. صحن دل میں ہے کسی حسرت ناکام کی قبر. صحنے دل میں ہے کسی حسرت ناکام کی قبر، اس کے اطراف اگے سرو و سمن تھے ہم لوگ. واہ واہ واہ. واہ واہ بہت اچھا. کتنے سرسبز تھے پیڑوں بھرے چشموں سے بھرے، واہ. آہا واہ واہ کتنے سرسبز تھے پیڑوں بھرے چشموں سے بھرے، یاد آیا ہے تجھے دیکھ کے بند تھے ہم لوگ. واہ. شام کے نکلے ہوئے صبح کو گھر جاتے تھے، واہ. شام کے نکلے ہوئے صبح کو گھر جاتے تھے. شام کے نکلے ہوئے صبح کو گھر جاتے تھے، جانے کس غم کی کفالت میں مگن تھے ہم لوگ. واہ. بہت اچھے. واہ بہت واہ اچھا. بہت. شام کے نکلے ہوئے صبح کو گھر جاتے تھے، واہ جانے کس غم کی کفالت میں مگن تھے ہم لوگ. ہجر جب بانٹا گیا تھا تو کسی چاک کے پاس، واہ. ہجر جب بانٹا گیا تھا تو کسی چاک کے پاس، وہ جو دو ایک پڑے تھے وہ بدن تھے ہم لوگ. واہ. بہت اچھا. واہ واہ اس کے ہونٹوں نے کہیں کا نہیں رکھا اشفاق، اس کے ہونٹوں نے کہیں کا نہیں رکھا اشفاق. ہم نے لوگوں سے سنا اہل سخن تھے ہم لوگ. بھئی واہ. بہت اچھا. بہت اچھا. بہت اچھے. واہ واہ بہت اچھا. ایک سے بات نہیں بنے گی، ایک اور ہوتا ہو. یقین یہ خود کو دلایا نہیں گیا اب تک، یقین یہ خود کو دلایا نہیں گیا اب تک. تیری صدا پہ بھی آیا نہیں گیا اب تک. واہ. اور تیری صدا پہ بھی آیا نہیں گیا اب تک. یہ کس کا رنج لیے پھر رہا ہوں آنکھوں میں، واہ یہ کس کا رنج لیے پھر رہا ہوں آنکھوں میں، یہ کس کا عشق بہایا نہیں گیا اب تک. میں اس کی شاخوں میں بیٹھا ہوں چہچہاتا ہوا، واہ. میں اس کی شاخوں میں بیٹھا ہوں چہچہاتا ہوا، وہ پیڑ جس کو لگایا نہیں گیا گیا اب تک. بہت واہ. اچھے. وہ ایک ساز جو ہر وقت بجتا رہتا ہے، وہ ایک ساز جو ہر وقت بجتا رہتا ہے، وہ ایک گیت جو گایا گایا نہیں گیا اب تک. بہت اچھے. بہت اچھا. وہ ایک ساز جو ہر وقت بجتا رہتا ہے، واہ وہ ایک گیت جو گایا نہیں گیا اب تک. کسی سے عہد کیا تھا اسے بھلانے کا، کسی سے عہد کیا تھا اسے بھلانے کا، یہ عہد ہم سے نبھایا نبھایا نہیں نہیں گیا گیا اب اب تک. واہ یہ عہد بس ایک شعر سنیے گا ذرا، بس ایک پل کے لیے اس نے بال کھولے تھے، واہ بس ایک پل کے لیے اس نے بال کھولے تھے، ہمارے چہرے سے سایہ سایہ نہیں گیا اب تک. بہت اچھے. بہت عمدہ. بس ایک پل کے لیے اس نے بال کھولے تھے، ہمارے چہرے سے سایہ نہیں گیا اب تک. واہ واہ ہمارے ذمے نئے کام مت لگا اشفاق، ہمارے ذمے نئے کام مت لگا اشفاق، وہ شخص ہم سے بھولایا بھلایا نہیں نہیں گیا. بہت اچھے. واہ. اشفاق اب اسی پہ بات کر لیتے ہیں. ہم کیس اسٹڈی کے طور پہ تمہیں رکھتے ہیں. تمہاری غزل میں مصروں میں ایک چونکا دینے والا عنصر ہوتا ہے. این ممکن ہے روز میرے شہر میں کچھ لوگ مر جاتے ہیں. کچھ لوگ میرے شہر میں مر جاتے ہیں.
ऐन मुमकिन है ठहर कर चले जाना मेरे दोस्त। अब ये जो अब लहजा है, हम शेर की क्राफ्ट के बारे में अगर बात करें, जो शेर लिखा जा रहा है, अगर वो दिल में तराजू नहीं होता, और मुझे यहाँ इमामुल मुत्तकीन हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम का कौल याद आ रहा है कि आपने फरमाया कि जो बात शेर में अदा की जा सकती है, फ़लसफ़ा उसका नमक अदा नहीं कर सकता। क्या कहने। तो ये जब तक वो चौंका न दे, और जब तक वो बात जो बज़ाहिर मामूली थी, जो रोज़मर्रा का हादसा है, उसको ऐसा बांधा गया कि उसने झुझोड़ दिया। ये जो अंदाज़ है, एक तो ये, फिर लफ्ज़ों की बुनत, इनसे मिलके जो शेरियत है, जो नगमगी है, वो क्या आपके ख़्याल में आज की शायरी में, आज के लिखने वाले के शेर में है या नहीं है? सर कुछ में तो बहुत है और कुछ लोगों में नहीं भी है। एक्चुअली हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि क्या ये शेर लिखना हमारी कोशिश के नतीजे में, हमारे अमल के नतीजे में है, या हमारी आमद है। जो आमद की चीज़ है वो एक राह हालत में, कई दफ़ा बिल्कुल प्योर हालत में आती है, लेकिन आपके पास एक राह लकड़ी जैसे आती है। एक राह हालत में भी एक चीज़ आती है आपके पास, लेकिन आपने उसको टेबल बनाना है, आपने उसको चेयर बनानी है। उसके लिए आपको, आपके पास क्राफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। राह से मुराद आपकी खाम हालत है। खाम हालत में, राह हालत में, मतलब खाम हालत में। तो उसको आपने, उसको पुख्ता हालत सामने लाने के लिए उसको आपको उस पे वक्त देना पड़ता है, उस मिसरे के साथ बसर होना पड़ता है। अब सवाल अगला है कि क्राफ्ट के कुछ बुनियादी असूल क्या हैं। अगर हम आने वाले बच्चों को या लोगों को ये बताना चाहें कि क्राफ्ट के तो वो अगर वो बुनियादी असूल फॉलो कर लेना, तो मिसरे की हालत इतनी खूबसूरत हो जाती है कि जिसकी हद नहीं है। मसलन क्राफ्ट में आपका जो भी मिसरा लिखा हुआ है, वो मिसरे को नसर की हालत में होना चाहिए, नसर के करीब तर। नियत शौक भरना जाएगा, अभी सुना है हम जी। तू भी दिल से उतर। अब ये आप इसको कोई और तरीके से कहें, सहल मुमतनी ऐसा हसीन है। नहीं सर, कोई भी आपने अगर कोई मिसरा लिखना है, ये रोज़ो शब मेरा शेर है, ये रोज़ो शब मेरी तहरीर, सलाम का शेर है, ये रोज़ो शब मेरी तहरीर में अधूरे हैं। वाह। तो ये आपको नसर का मिसरा मिल रहा है, ये रोज़ो शब मेरी तहरीर में अधूरे हैं। सिंपल एक नसर के पास तरीन, नज़दीक तरीन चीज़ है। आप बुनियादी अगर चीज़ें ले लें, ख्याल तो हर बंदे का अपना है ना। खुर्शीद रिजवी साहब का एक दफ़ा जिक्र कर रहे थे, वो कह रहे थे वैसे ये जो शेर होता है ना, ये दौड़ता हुआ घोड़ा होता है। जैसी जमीन में दौड़ रहा होता है वैसी गर्द उड़ती है। वाह 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 वाह। वाह। तो उनकी ये बात, अब उसमें वो कितना बड़ा ख्याल देता है या छोटा देता है, या छोटे ख्याल को वो कितनी खूबसूरती से बड़ा करके पेश करता है, ये उसकी ज़मीन पे और उस पे हमें छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो मिसरे की बुनियादी चीज़ें हैं, अगर हम उन बुनियादों पे काम करना सिंपल शुरू कर दें, अब हम ये आज की बात नहीं कर रहा, कोई भी, अब इकबाल को ले लें, नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम अभी, नाला है बुलबुले शोरीदा तेरा खाम अभी, जैसे गुफ्तगू हो रही होती है, अपने सीने में इसे और जरा थाम अभी, पुख्ता होती है अगर मसलहत अंगेज हो अक्ल, इश्क है मसलहत अंगेज तो है खाम अभी। तो सिंपल बुनियादी, आप जिस भी रिवायत में आएंगे और उस शेर पे गौर करेंगे कि चलें इसका ख्याल तक तो चलें, इनका पता नहीं किस लेवल पे इन्होंने सोचा, या क्या मैं कुछ और सोचना चाहता हूँ, लेकिन हम उनके शेरी हुस्न के बारे में तो देख सकते हैं कि मिसरा इन्होंने कितना हसीन क्रिएट किया है यहाँ पे। अगर मैं यही ख्याल लिखूं तो क्या मैं ऐसा मिसरा क्रिएट कर सकता हूँ?
टाइम देना पड़ता है सर इसको। मगर यहाँ से एक और सवाल आ जाता है। मगर इसमें लगती है मेहनत ज़्यादा। ठीक है, क्राफ्ट, छेनी हथौड़ी, हाँ जी। आप कारीगर अच्छे हैं और अच्छा मिसरा जो है वो आप तराश लेते हैं। ख्याल अहम है कि क्राफ्ट अहम? दोनों अहम हैं। क्राफ्ट्समैन तो दे आर मेड, आर्टिस्ट्स आर बोर्न, ये कहा जाता है वैसे। लेकिन असल में बात ये है कि आपकी वो कमिटमेंट चाहिए, और वो सिर्फ आपने चौंका देने वाला मिसरा नहीं बनाना। उसके अंदर जैसे आपने सहले मुमतना का जिक्र किया, अब ये दिल नादा तुझे हुआ क्या है? अब क्या इसमें तहदारी नहीं है, परते नहीं हैं, क्या तासीर नहीं है, शेरियत नहीं है, वो सारे लवाजमात भी तो मौजूद होने चाहिए ना। और तहदारी बहुत ज़रूरी है। ऐसा तो नहीं कि जिस तरह बहुत सी चीज़ें हमें नज़र आती हैं जिसमें एक रोज़मर्रा का मुकालमा है और उसमें कुछ भी नहीं, एकदम से आप चौंकते हैं, मगर उसमें कोई परत नहीं है, उसमें कोई मतलब नहीं है, उसमें कोई बात हमारे सामने नहीं आती, शेरियत नहीं है सबसे अहम, और तासीर बड़ी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने कहा कि वो आके ठग से लगे, वो ठग से बग़ैर तासीर के तो नहीं लगेगा। और तासीर के लिए, शेरियत के लिए, नगमगी के लिए और तहदारी पैदा करने के लिए आपको वक्त उसके साथ गुजारना पड़ा। एक हमारे यहाँ हमने देखा कि एक बड़ी मुस्तहकम तानीसी अदब की रिवायत थी, और शेर में ज़रा ठहर के देर से आई, लेकिन अदा जाफरी से हम देखते हैं कि अदा के बाद फिर किशरापा और ज़हरा की क्या आवाज़ आई। ये अपनी पीक पे पहुंचा जब परवीन का नाम आया, और वो मर्ग नागहानी ज़बान उर्दू का एक ऐसा बड़ा लहजा ले गई कि आज आपको ये तय करना मुश्किल होता कि आज के अहद का सबसे बड़ा शायर कौन है। हम देखते हैं कि एक गैप आ गया है। हाँ, ऐसा है कि हमारे पास यास्मीन हमीद आई, समीना राजा आई, या हमीदा शाहीन आई, लेकिन जो अंदाज़ एक लड़सा, और वो जिसे कहना चाहिए ना कि एक कहीं कहीं बगावत की शरारत के साथ नौशी या परवीन का था, किशरापा वगैरह तो बिल्कुल ही बड़ा हार्ड, वो क्यों अम्बरीन कहीं अब हमें नज़र नहीं आता? पहली बात तो ये है कि बहुत लिखा जा रहा है, और औरतें और लड़कियां भी बहुत लिख रही हैं, और उसमें सिर्फ ये नहीं कि जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि एक रोज़मर्रा की मुकालमे वाली शायरी ही हो रही है, या चौंकाने वाले मिसरे सब घड़ने लगे हुए हैं, बीच में बगावत के आवाज़ें भी हमें नज़र आती हैं। सारा शगुफ्ता तो अब उनको भी गुज़रे कुछ वक्त हो गया, हम सब जानते हैं, लेकिन और साथ में जो तरक्की पसंदाना रुझानात हैं वो भी हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं आजकल भी, और नज़्म में ये चीज़ें बहुत ज़्यादा आ रही हैं। आपने अदा जाफरी से बात की, आप उससे पहले भी देख लें, ज़ेख़े शीन, ज़ाहिदा खातून शेरवानिया से, यानी आपकी पूरी हिस्ट्री ऐसी है, लेकिन हमें कम कम नज़र आती है, और कम कम होने की बहुत सारी वजूहात हैं, और वो सारी जो वजूहात हैं उसमें कल्चरल एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा अहम हैं। ठीक है, क्योंकि हमारी जो औरत की क्या था भी जो आपने गज़ल पढ़ी थी, दस्तक से आया होती है ताख़ीर हमारी, हम वक्त से पहले भी पहुंच जाएं अगर घर, दस्तक से आया होती है ताख़ीर हमारी। यही मामला है। आप इसको आज की वर्किंग वुमन के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं, क्योंकि मैं भी वर्किंग वुमन हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, लेकिन बात यह है कि वो बगावत वाले एलिमेंट्स भी मौजूद है, नज़्म में भी हैं, कहीं कहीं गज़ल में भी नज़र आ रहे हैं, और लिखा जा रहा है। ये एक अलग बात है कि बहुत से लोगों की अभी किताब हमारे सामने जब आएगी तो और सूरत हाल भी वाज़े होगी, लेकिन इक्का दुक्का मिसालें हमारे पास हर वक्त मौजूद रहती हैं, और तादाद में जो एक ज़ाहिर तवाज़ुन नहीं है, उसके अंदर वही कंस्ट्रेंट्स और बैरियर्स और वो सब चीज़ें अभी भी मौजूद हैं। बदल गई हैं चीज़ें, मगर अब वैसे नहीं। ऐसा क्यों है कि सिरके का इल्ज़ाम या किसी की इनायत का इल्ज़ाम औरत शायर पे लगता है, किसी मर्द शायर पे नहीं लगता? बस दुखती रग को आपने छेड़ा है, क्योंकि हम ये बात बहुत करते हैं कि जब किसी मुशायरे में हमें अच्छे अच्छे शेर सुनने को मिलते हैं, हम कहते हैं क्या नौजवान शायर आया है, बड़े अच्छे शेर सुना रहा है, लेकिन लड़की अगर नज़र आए तो हम कहेंगे
پتہ نہیں یہ اچانک آئی ہے, اس نے کیسے لکھ لیا, کس نے اس کو لکھ کے دیا, فوراً سب ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں اور باتیں کرنے لگ جاتے ہیں. اور میں نے جس طرف پہلے اشارہ کیا, ہمارے پدرسری سماج نے جو بیریئرز ہمارے لیے رکھے ہیں وہ سب اس کے پیچھے یہی ایلیمنٹس موجود ہیں. عورت اس طرح سے عقل نہیں رکھ سکتی, وہ سوچ سمجھ نہیں سکتی. ہمارے پاس ہمارے سارے لٹریچر میں یا تو بہت مجبور و لاچار عورت ہوگی, یا کوئی بہت چڑیل عورت ہوگی, کوئی دانا وزڈم رکھنے والی, اچھے فیصلے کرنے والی, اچھا ذہن رکھنے والی, اچھا لکھنے والی عورت ہمارے پاس آرکیٹائپ اس کا نہیں ملے گا. اسی طرح سے روزمرہ میں بھی ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارے آس پاس یہ جو سب عورتیں کام بھی کر رہی ہیں, پھر بھی رہی ہیں, مگر یہ اس لیول پہ یا اس جگہ پہ نہیں پہنچ سکتی. ہماری بڑی جامعات کی کتنی عورتیں وائس چانسلرز ہیں, رہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ آئی وی لیگ جو انسٹیٹیوشنز ہیں امریکہ کے, وہاں پہ بھی یہ بریک تھرو جا کے اب آیا ہے نا, کہ ایک ویمن پریزیڈنٹ آئی, دوسری آئی, اب کہہ رہے ہیں کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر 6 ہو جائیں گی, اور بہت بڑا بریک تھرو ہے. تو اس تعصب کے لہجے کو بدلنا پڑے گا. تب تک ہم ذرا کچھ موسیقی کے لہجے سے سن لیں کہ کیا کوئی ترنم میں بات کی جا سکتی ہے یا نہیں. کیا سنا رہے ہیں ہمیں خود؟ میں ایک پنجابی سانگ ہے, گیت میں وہ جزاک اللہ. ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਲੱਭਿਆ, ਚੈਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਲ ਦਾ ਚੈਨ ਲੱਭਿਆ, ਚੈਨ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ. ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਗਏ. ਉਹੀ ਰੋਕ ਅਵਲੜੇ ਦਿਲ ਦੇ ਨੇ, ਆਰੀ ਵਾਂਗੋਂ ਕਲੇਜਾ ਚੀਂਦਾ ਏ. ਵਖ ਦਿਲ ਤੋਂ ਜੇ ਤੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ. तेरे प्यार ने खोली खुशी मेरी, चैन लभदा किते नहीं की करिए.
ਅਸੀਂ ਹੱਥੀ ਜੁਦਾਈ ਦੇ ਤੀਰ ਖਾਦੇ ਦੁੱਖ ਲੱਭਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ ਕਿਤੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਸਭ ਗਮ ਦੁਨੀਆ ख़वातीन हज़रात, बात गई की नशस्त में एक बार फिर खुश आमदीद। गुफ्तगू बड़े दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है कि जहाँ हम तानीसी अदब की भी बात कर रहे हैं और शेर के क्राफ्ट की भी बात कर रहे हैं। अमरीन मेरा जी चाहता है कि जो हम ये ख़वातीन की अदब में उनका मकाम उस पर कुछ बात ज़्यादा कर सकें। जो शेर औरत ने कहा वो इतना जानदार था। मसलन सादा शगुफ्ता का ये कहना कि मैं तो सादा कागज़ से भी ज़्यादा खामोश रह सकती थी, इतनी भरपूर बात, मैं सादे कागज़ से भी ज़्यादा खामोश रह सकती थी। क्या सबब है कि हमें उसकी गूंज अदबी हल्के में वैसी सुनाई नहीं दी जैसे किसी मर्द शायर के शेर की गूंज थी? मैं जब पीएचडी कर रही थी तो उस स्टडी में एक हिस्सा ये भी था कि मैं कुछ लोगों से उसके बारे में गुफ्तगू करूं। मेरा काम बेसिकली फ़िक्शन और जेंडर पे था और मैंने कुछ लोगों से सिंस ये जेंडर स्टडीज़ की डिग्री थी तो ज़रा सोशल साइंस का एस्पेक्ट डालने के लिए कुछ कन्वर्सेशंस भी की और बातें की। और उसमें मैंने ये रियलाइज़ भी किया कि जो हमारा सिलेबस है लैंग्वेजेस और लिटरेचर का, उसमें ख़वातीन की नुमाइंदगी ना होने के बराबर है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास शायरी में बड़े नाम नहीं थे, हमारे पास नसर में बड़े नाम नहीं हैं। ज़ाहिर है कि कोई कोई चीज़ मौजूद है, जैसा कहीं आग का दरिया है, कहीं आंगन है, लेकिन एक जो बहुत भरपूर उनकी शमूलियत हो सकती थी वो वहाँ मौजूद नहीं है। और सिलेबस वैसे भी कई बरस तक रिवाइज़ नहीं होते, साल हर साल वही चीज़ें चलती रहती हैं, मगर अगर कभी रिवीजन हो भी तो ये नहीं सोचा जाता कि किसी हद तक कोई बैलेंस क्रिएट किया जाए। आप फ़िक्शन में ही देख लें, कुर्रतुल ऐन हैदर, इस्मत वगैरह से लेकर हमारे पास खदीजा मस्तूर, हाजरा मसरूर, बानो कुदसिया, खालिदा हुसैन, बहुत बड़ा नाम। देखिए सिलेबस तो उसी सोच का आईनादार है ना। जी जी। और इसमें जो अदबी मंजरनामा है खुद उसने भी सोच तख्लीक की है। कहानी के बाब में बहुत नामवर नाम एकदम से जहन में आते हैं, लेकिन सोचना पड़ता है। खदीजा मस्तूर, हाजरा मस्तूर, जमीला या बानो आपा, सोचना पड़ता है। जो मिसरा अदा जाफरी लिख गई हैं, जी जी, बाकी ना रहे साख अदा दश्ते जुनूं की, ऐसे ऐसे उनके शेर हैं कि कोई संगे राह भी चमक उठा तो सितारे सहरी कहा, मेरी लाज जो तेरे हाथ थी उसे किसने तेरा शबी कहा, और मेरे रोज़ शब भी अजीब थे, न शुमार था न हिसाब था, कभी उम्र भर की खबर न थी, कभी एक पल को सदी कहा। अब ये इसकी जो दबंग धाक है वो दूर तक जैसे बाज़गश्त आए वो नहीं सुनाई देती। वो फिर कहा जाता है अच्छा नहीं, अदा अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा नहीं हुई, उनका कुछ मसला था, ये था। इसका एक एंगल बड़ा अहम है, उस पर हमें गौर करना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी को
कौन बनाता है या कस्टोडियन ऑफ द पेन हमेशा कौन रहा है। आप अगर आग का दरिया का मैं ज़िक्र करूं तो मुझे तो लगता है कि उर्दू नावलों में सबसे ऊपर मैं तो उसको रखूंगी। और फिर पार्टीशन आपको सोचना पड़ेगा, मंटो ज़्यादा बड़ा कहानी लिखने वाला था या इसमें आप लिखते? नहीं नहीं, वो आप ये देखें कि इस तरह से शायरी में भी बहुत अच्छा काम है, बहुत चीज़ें हैं, मगर देखें जब हम किसी शायर औरत की बात करते हैं ना, तो सबसे पहले तो कोई नक़ाद भी मैं माज़रत चाहूँगी ये कहते हुए, वो अपना जुमला शुरू करेंगे जो औरतें शेर कह रही हैं उनमें इस औरत का ये मकाम है। जो मेन स्ट्रीम है जहाँ पे 4000 6000 मर्द भी बहुत फजूल शायरी कर रहे हैं मुस्तकिल, और एक वक्त में इतने शायर तो हर जगह मौजूद ही होते हैं, तो वहाँ पे ख़ास एक कंपार्टमेंट में डाल के एक डब्बे में चढ़ा कर ये बात की जाए, इसका कोई जवाज़ कैसे आप ढूंढ सकते हैं। नज़्म में हमारे पास देखें, अगर आप सारा शगुफ्ता की आप बात करते हैं या आप फ़हमीदा रियाज़ की बात करते हैं या और बहुत से नाम हैं, उन सब की आप बात करते हैं, तो सबसे पहले तो ये करेंगे औरतों में ये यहाँ पे है। अच्छा, मेन स्ट्रीम में उनको रख के बात ही नहीं करते। हम मज़ाहमत के लहजे में बहुत ज़्यादा जालिब साहब की बात करते हैं बिलाशुबा ठीक है। जालिब, लेकिन जो मज़ाहमत का लहजा फ़हमीदा के यहाँ है, जी बिल्कुल। ए देश मुबारक हो पहचान किए साथ, जो आई न थी पहले, रक्सा है मेरी गलियां, गाते हैं मेरे गाँव गीत, नई लय का वो गीत के धुन जिसकी लहराई न थी पहले। क्या ए क्या देश। फिर इसी तरह से असीर शहजादी और भी क्या देखें ना नहीं। क्या क्या चीज़ें हैं उनके पास। ये जो बायस है जिसमें आप उसको बाकायदा वो जगह नहीं देते कि जो उसका मकाम व मर्तबा है। एक बात वैसे और भी है, एक तो मैंने आपसे ये कहा ना कि एक पहले ही डब्बे में डाल के अलग कर देते हैं कि ये औरतें हैं, ये इनका ये मकाम यहाँ पे बस तय करते रहो, इसी में चक्कर में इनको मसरूफ़ रखो। दूसरी चीज़ ये है कि ये कहा जाता है कि दुनिया की 50% आबादी के जो मसाइल हैं वो असल में ऑब्जेक्टिव मसाइल नहीं हैं, वो बड़े मौज़ूआत बड़े मसले नहीं हैं। औरतें तो ये इस तरह की बातें करती रहती हैं, मजबूर और लाचार औरत के ऊपर जो मज़ालिम हैं उसका रोना रोती रहती हैं। मौजू तो कोई छोटा बड़ा नहीं होता, आप उसके साथ क्या क्रिएट कर रहे हैं। और ऐसे भी जैसे आग का दरिया का जिक्र हुआ, आंगन, दश्ते सूस, राजा कैद वगैरह वगैरह, ये जो नावल हैं इन सब में बड़े रोमानवियत की तहरीर जो तहरीक थी रोमानवियत की, उसमें उनका बहुत बड़ा नाम है। तरक्की पसंदी की पसंदाना तहरीक जो थी उसमें भी हमारे पास औरतों के बड़े नाम मौजूद है, रशीद जहाँ, इस्मत और भी कैसे कैसे नाम हैं। लाहौर ने एक बहुत बड़ा नाम दिया था, शबनम शकील। शबनम आपा कहती हैं कि इसके लिए जो तुमने किया सबको इल्म है, इस घर में हम भी रहते हैं, घर हम पे छोड़ दो। क्या कहना। तो अब जब इतनी ज़्यादा ख़वातीन के शेर की बात हो चुकी है तो फिर शायर से शेर ना सुना जाए। चले मैं एक और गज़ल से आपको चंद शेर। हमें मिलना दरख्तों से पिघलती बर्फ़ धानी कौपलों में जब बदल जाए। वाह, हमें मिलना दरख्तों से पिघलती बर्फ़ धानी कौपलों में जब बदल जाए। गज़ल। हमें मिलना दरख्तों से पिघलती बर्फ़ धानी कौपलों में जब बदल जाए। हमें मिलना हमारे दिल में ठहरा ज़महरीरी वक्त शायद तब बदल जाए। वाह। हमें मिलना नए इम्कान से, यानी नए किस्से नए उन्वान से मिलना। क्या नए किस्से नए उन्वान से, बात दोबारा पढ़ी हुई। हमें मिलना नए इम्कान से, यानी नए किस्से नए उन्वान से मिलना। हमें मिलना कि जब मतलब के सब अल्फाज और अल्फाज का मतलब बदल जाए। भाई वाह, क्या क्या। वाह। हमें मिलना कि जब मतलब के सब अल्फाज और अल्फाज का मतलब बदल जाए। हम अपने हक में तेरे सब कहे अल्फाज गिनते हैं, फिर उनका वज़न करते हैं। वाह, क्या अच्छी बात। हम अपने हक में तेरे सब कहे अल्फाज गिनते हैं, फिर उनका वज़न करते हैं। भले तादाद से मयार अफजल है, मगर मयार जाने कब बदल जाए। वाह वाह। क्या क्या। भले तादाद से मयार अफजल है, मगर मयार जाने कब बदल जाए। तमाशा गर हमारे आईनों पर गर्द है, तेरा तमाशा भी पुराना है। वाह, क्या तमाशागर हमारे आईनों पे गर्द है, तेरा तमाशा भी पुराना। तमाशागर हमारे आईनों पर गर्द है, तेरा तमाशा भी पुराना है।
मगर शायद हमारी सैर बीने ठीक होने तक तेरा कर्तव्य बदल बदल जाए। वाह, क्या क्या अच्छी गज़ल है भैया, क्या अच्छा अंदाज है। मुझे तो बहुत देर तक ये मालूम नहीं हो पा रहा था कि ये नज़्म का आहंग है या तवील बहर थी ना बहुत अच्छी। और मैं तो कहना चाहता था अपने प्रोड्यूसर से कि ये पूरी की पूरी विजुलाइज हो सकती है। सही बात। विजुलाइजेशन से अशफाक एक और मसला आज के शायर का। कहा जाता है कि पहले जब अभी मतलब पार्टीशन के बाद के ज़माने में और जब रेडियो टेलीविज़न आ गया तो गज़ल के उरूज का एक सबब ये भी था कि इकबाल बानो और फरीदा खानम गाती थी और आपकी गज़ल नूरजहां ने गा ली, तो क्या बात है। क्या बात है। अब तमाम ड्रामों के टाइटल सॉन्ग एक नज़म होते हैं, तो शायद धड़ाधड़ हम नज़म लिख रहे हैं। तो ये जो कमर्शियल एंगल है शायरी का, इसने कितना इफ़ेक्ट किया है। और कमर्शियल एंगल था, बिल्कुल था। आप सारे हिंदुस्तान में शेर फिल्म इंडस्ट्री का था कि वहाँ गाने लिखे जा रहे थे, लेकिन शेर तो शेर था। तो उसने कमर्शलिज्म में खासा ग्रो किया। इसमें कहने में कोई हार नहीं है हमें कि कमर्शलिज्म में उसने ग्रो किया है। और बहुत से शायर सिर्फ इसीलिए हैं। यस, लेकिन जो फिर वही बात फिर वही रहेगी कि शेर ने जिंदा अपनी शेरियत से रहना है। जब आप लिख रहे हैं कोई चीज़ तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए आप क्या लिखने लगे हैं। नज़्म है तो उसमें एक तंजीम मौजूद होनी चाहिए, जो बुनियादी चीज़ें हैं। जो शेर लिखा गया है, अब आपका क्वेश्चन है कि क्या ये प्रोफेशनलिज्म ने या ये कमर्शलिज्म ने इसको क्या डैमेज किया है। तो शेर डैमेज नहीं होता सर। वो जो शेरियत कहीं जन्म ले रही होती है ना, वो अपनी ग्रो कर रही होती है। वो जो नज़र आ रहा है वो फौरी, आजकल इतनी स्पीड है कि वो फौरी नीचे चला जाता है। आप फेसबुक पे लगाएं, शाम को अगर आप अपना वही शेर अपना फेसबुक पे देखना चाहेंगे तो आपके ऊपर इतना चीज़ें आ चुकी होंगी कि वो नीचे दब जाएगा। शेर अब खुद जिंदा रहेगा। अगर शेर में जान है, अगर शेर में दिलों में तराजू होने की ताकत है, अगर उसे दूसरे के ख्याल के साथ, आपने विजुअलाइजेशन की बात की। मैंने एक शेर लिखा और मैंने अपने एक दोस्त को सुनाया, तो उसने कहा यार शेर तो अच्छा है, विजुअलाइज नहीं हो रहा। देखिए कैसी अजीब बात है। फिर मुझे रुकना पड़ा और फिर मुझे शेर को दोबारा देखना पड़ा कि यार ये बात ठीक कर रहा है कि शेर ठीक है। हसनैन साहर उसका नाम है। उसने कहा कि शेर विजुअलाइज नहीं हो रहा, शेर बहुत अच्छा है लेकिन इसमें एक खामी है। तो अगर आप किसी शेर के साथ बसर करना चाहते हैं, उसका सरापा ना बन सके, उसकी सौती, उसकी बसरी, उसकी पूरी शक्ल, अगर तस्वीरी शक्ल अगर नहीं आ सकती तो वो शेर के लिए बड़ा मुश्किल है। लेकिन अब मसला तो ये है ना कि आप जो तुकबंदी कर दें और खुदा भला करे मुजाहिद हुसैन साहब का, वो उसमें झनकार भर देते हैं और वो गीत बन जाता है और वो गाते फिरते हैं। तो वो जो गीत गाया जा रहा है और बरमला गाया जा रहा है और जिसे हमारे बच्चे जो हैं वो मतलब मैं घर में दाखिल हूँ तो दोनों लड़के जो चीज़ें सुन रहे होते हैं उससे जिस कदर तबीयत मुकद्दर होती है तो कहते हैं आगा आप नहीं जानते हैं, ये आजकल यही है। ये आपकी बात बिल्कुल ये अलमिया मौजूद है। और अब फिर लेकिन मेरे पास बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस है। आप खुद कंपोजर हैं। मैं जब अपने घर में दाखिल होता हूँ तो मुझे हैरत होती है कि मेरा बेटा बड़े गुलाम अली खां को सुन रहा होता है और मैं कई दफ़ा मिसेस को कहता हूँ कि यार इसका क्या बनेगा, ये अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है और ये बड़े गुलाम अली खां के अलावा या प्रॉपर रागों के अलावा ये पूरा, और बता रहा होता है कि ये जो गज़ल गाई जा रही है ये इस राग में गाई जा रही है। तो ये बात ठीक है आपकी, ज़वाल बहुत बुरे लेवल पे आ चुका है। बच्चों को हम उर्दू पढ़ाते हुए उसके मानी हमें इंग्लिश में बताने पड़ते हैं कि बेटे इसका ये मतलब, अच्छा बाबा वो जो आप ट्रिक है इसका मतलब। मैंने कहा हाँ जी इसका मतलब ट्रिक है। चालाकी को अगर हम बता रहे हैं तो हमें उसको इंग्लिश में बताना पड़ता है। लेकिन इस पे एक बहुत बड़ी, मैं कहूँगा कि एक तो हमारा भी कसूर है इसमें। आप एक शायर की क्या इज्जत करना, अगर आप एक अकेले शायर हों, आप लिखने वाले हैं, आप तख्लीक़कार हैं, आप करते क्या हैं? तो वो कहेंगे शायरी अच्छे शायर तो हैं आप, फिर और क्या करते हैं।
बल्कि एक अगर सर्जन शायर हो जाए या एक टीचर शायर हो जाए तो वो कहते हैं ये आप कैसे काम कर रहे हैं। आपके बारे में कश्फ नाहीद का कहना ये है कि मैं हस्पताल में दाखिल थी और अशफाक मेरे कमरे में आया और आके कहने लगा ऑपरेशन कर रहे असा गज़ल हुई है। तो मैं तो वही परेशान हो गई कि इस डॉक्टर से इलाज नहीं कराना। मगर आप ये भी तो देखें ना कि गालिब के ज़माने में दिल्ली में जो 6000 शायर थे वो किधर गए। तो क्या हाँ, देखिए, तो ये तो बड़ी शॉर्ट लिव्ड होती है। लेकिन यही मेरा आप दोनों से सवाल है, बाजार की जो फरमाइश है वो कुछ और है। हर एक शय तो आप बेच देते हैं, लेकिन फिर क्लासिक भी कोई चीज़ होती है जिसका बज़ाहिर कोई दाम नहीं लग रहा होता, सही जो बाजार के लिए नहीं लिखी गई। क्या सबब है कि आज अदब, तालीम, फ़नून लतीफ़ा, सक़ाफ़त, शेर नग़मगी, गीत, रक़्स, हर एक पे बाजार हावी है? देखिए, ये रास्ता चुनने की बात है। कोई शख्स तय कर लेता है कि मेरे पास ये क्राफ्ट है या मेरे पास ये स्किल है या मेरे पास ये आर्ट भी है, तो मैंने कौन सी डायरेक्शन लेनी है। मैंने वो ड्रामों के लिए वो जो सॉन्ग है वो लिखना है या मैंने बैठ के अपना सीरियस काम करना है। अच्छा, उसमें कबाहत तो कोई नहीं, कबाहत नहीं है, मतलब मतलब फिल्म का गीत लिखा नहीं था? नहीं, फिल्मी गीत तो हमारे लेकिन यहाँ फिर वो कैसे क्या कैसे अच्छा लिख के था? गए, फैज साहब ने वो लिखा तो बोला। हमारे इस तो पूरे फिर वो काम रीजन भी- में बहुत बड़े बड़े नाम हैं। और मैं तो कहती हूँ कि बहुत से शायर अगर अच्छे वो गाने सुन लें तो उन्हें थोड़ा सा पता चल जाएगा। लेकिन तब तक हम आपसे गीत सुनेंगे। हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, सजना बाज होया हनेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, हाय ओ दिल मेरा। जोगी बैठा बीन बजावे, दिल मेरे नू चैन नावे। जोगी बैठा बीन बजावे, दिल मेरे नू चैन नावे। नस पई सपनी, नस पई सपनी, रोवे सपेरा, हाय ओ रब्बा नहीं ओ लगदा दिल मेरा, हाय ओ दिल मेरा।
सोनी लाज कोई टूटे होए दिल दा दसो नी लाज कोई टूटे होए दिल दा करो कोई बहाना दिल भर नहीं मिलदा चार चुफेरे होया हनेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हाय दिल मेरा सजना बाज होया हनेरा हाय रब्बा नहीं लगदा दिल मेरा हाय दिल मेरा हाय दिल मेरा रब्बा 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 ख़वातीन हज़रात, रात गए की बात अब ज़रा अख्तितामी माहौल में आ चुकी। मराहिल वो हैं कि अब वो जो हमने रेशम की गिरह खोली थी उसको कहीं समेट लीजिए। अशफाक, ताल्लुक़ आपका रहीम ख़ान से, तालीम के लिए आप लाहौर तशरीफ़ लाए, मेडिकल की तालीम आपने की, आपके भाई साहब इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में होते थे और बाद में वो जो उर्दू में कहा जाता है ना कि सैयाँ हो गए कुतवाल अब डर का है का, वो पुलिस सर्विस में हैं, सो हमारी बादशाही चलती है। पंजाब का घराना, साउथ पंजाब का घराना, टेक्निकल एजुकेशन में भेज रहे हैं, एक को डॉक्टर बना रहे हैं, एक को इंजीनियर बना रहे हैं। लड़के दोनों शेर कहते हैं, दोनों बहुत अच्छा म्यूज़िक कंपोज़र हैं। ये मुजाहिद भाई के लिए परेशानी की बात हो सकती है। और दोनों मौसीकी और ज़बान की बुनत के बारे में पूरी तरह से बात जानते हैं और शेर उसकी गवाही देता है। ये कैसे? ये तो हम समझते हैं हम अहले ज़बान का ये इलाक़ा है। और वो जो मीर ने इक्के में बैठे हुए एक शख्स ने कहा कि चलिए राह का शगल ठहरा, हम ज़रा गुफ्तगू कर लेते हैं, और मीर ने कहा आपका शगल ठहरा हमारी ज़बान ख़राब होती है। क्या क्या तो ये जो आप ना अब जिनकी ज़बान मादरी ये नहीं थी, ये कैसे हुआ कि आपके घराने में ऐसा चलन हुआ उर्दू का कि वो शेर बन के ढली? एक्चुअली मेरे फादर भी लिखते थे, ये बहुत कम लोगों को पता है, लेकिन मेरे फादर भी अच्छा शेर व शायरी से। फिर हम जब बताया कि मेरे सब बड़े 9 बहन भाई थे हम, और मैं और अकबर तो लास्ट थे, दोनों छोटे थे। तो सब हमने ये किताबें बचपन में अपने घरों में देखी हैं। फराज, फैज़ साहब पढ़े हैं, नासिर काज़मी पढ़ा जा रहा है। तो यानी हमें याद है कि हम 5वीं क्लास में वो छोटी डायरियाँ मिलती होती थी, उन पे हम उर्दू के शेर लिखा करते होते थे, और वो रख के अपनी जेब में रखते थे और बड़ा फ़ख्र महसूस करते होते थे, और हमें वो अच्छे लगते होते थे। मेरा ख्याल है ये जो मैंने इसको समझा है कि ये गॉड गिफ्टेड चीज़ होती है, और जैसे ही आपको माहौल मिलता है वो प्रॉपर, बहुत सारे लिखने वाले लोगों को माहौल ही नहीं मिलता, वो ग्रो नहीं कर सकते। एक बीज अगर कहीं
सहरा में पड़ा हुआ है तो वो उसकी अगर रिक्वायर्ड वो नहीं है इकोसिस्टम नमूना तो मिली वो ग्रो नहीं कर सकेगा। तो हमारे ऊपर अल्लाह का एहसान ये हुआ कि एक तो उसने हमें ये अहलियत और ताकत दी, दूसरा उसने जिस माहौल में रखा वो इसके लिए बड़ा साजगार था। तो इसलिए हम अहले ज़ुबान के ना तो कभी मुकाबले में आने की कोशिश करेंगे और ना हम आ सकते हैं, ये तो हमें इदराक अपना मौजूद है। लेकिन ये है कि हम अहले ज़ुबान को ये ज़रूर कहेंगे कि हमने बेअदबी से बचने की जितनी कोशिश हो सकती थी उतनी की। आपसे मैं अर्ज़ करूँ कि ज़बान उर्दू पे जितना पंजाब का कर्ज़ है किसी और इलाके का नहीं है कि 1020 महमूद गज़नबी की फ़ौजें इस शहर पे आईं और ये ज़बान बनना शुरू हुई, और फिर बगावत के लहजा भले उठो मेरी दुनिया के गरीबों को जगा दो, या हम देखेंगे वो दोनों लहजे लाहौर के हैं। आप हमें अभी सुनाएंगे क्या, ये बताइए। बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े। वाह, बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े, कोई ऐसा हो जिसे हाल सुनाना ना पड़े। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, जा बजा मुझको कहीं रिज़्क कमाना ना पड़े। वाह, जा बजा मुझको कहीं रिस्क कमाना ना पड़े, मुझे कासा भरे मेले में घुमाना ना पड़े। क्या बात है, बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, आ किसी ख्वाब में हम महवे सफ़र हो जाएं, वाह, आ किसी ख्वाब में हम महवे सफ़र हो जाएंगे, वाह वाह, ऐसी मंजिल को जहां पर हमें जाना जाना ना ना पड़े। बहुत पड़े, अच्छा, वाह, बहुत अच्छा ऐसी शेर है, मंजिल वाह को वाह, ऐसी बस्ती हो जहां गिरिया कुना हो सब लोग। वाह, ऐसी बस्ती हो जहाँ गिरिया कुना हो सब लोग, मेरा पसंदीदा शेर है ये। ऐसी बस्ती हो जहां गिरिया कुना हो सब लोग, और तेरा इश्क किसी से भी छुपाना ना पड़े। वाह वाह वाह, दोबारा पढ़िए, क्या दोबारा अच्छा पढ़िए। शेर, ऐसी वाह, वाह, बस्ती हो जहां गिरिया कुना हो सब लोग, और तेरा इश्क किसी से भी छुपाना ना पड़े। मिलके दोहराओ सभी खाना बदोशों की दुआ, वाह, मिलके दोहराओ, मिलके दोहराओ सभी खाना बदोशों की दुआ। ए खुदा हमको ये घर बार उठाना ना उठाना पड़े। ना पड़े, वाह वाह वाह, वाह, ए खुदा हमको ये घर बार उठाना ना पड़े, उठाना ना पड़े। कोई मेरे लिए मादूम हुआ जाता है, वाह, कोई मेरे लिए मादूम हुआ जाता है, क्या करूं मैं कि मुझे सामने आना ना पड़े। वाह वाह, कोई मेरे लिए मादूम हुआ जाता है, क्या करूं मैं कि मुझे सामने आना ना पड़े। शेर खुद रो किसी पौधे की तरह हो इशफाक, वाह, शेर खुद रो किसी पौधे की तरह हो अशफाक, शाख पर हमको कोई फूल खिलाना ना पड़े। वाह, बात करनी ना पड़े, अश्क बहाना ना पड़े। वाह वाह, कोई ऐसा हो जिसे हाल सुनाना सुनाना ना ना पड़े। पड़े, बहुत बहुत अच्छी बढ़िया, गज़ल है, बहुत क्या बात क्या है, वाह, अच्छा वाह, वाह। अंदाज है। एक और अता हो जाए। फिर मैं आपको अपनी पसंदीदा गजल सुनाता जी, शुक्र है पसंदीदगी पे आए। हूँ। अजब सा अब के रवैया शब फिराक का है, वाह, अजब सा आपके रवैया शब फिराक का है, बताएं कैसे जो लहजा शब फिराक। फिराक का है, वाह, वाह, किताबे इश्क के पहले वरक पे दर्ज है ये, किताब इश्क के पहले वरक पे दर्ज है ये, कि इस किताब में किस्सा शब फिराक का है, वाह, बहुत अच्छे, किताबे इश्क इश्क के के सफ़े पहले वरक पे दर्ज है ये, वाह, कि इस किताब में किस्सा शब फिराक का है। किसी से हम सफरी का कहें तो कैसे कहें, वाह, किसी से हम सफरी का कहें तो कैसे कैसे कहें, कहें, हमारे पाँव में रास्ता शब फिराक का है, वाह, ये टूट फूट जो ओझल है सबकी आंखों से, ये टूट फूट जो ओझल है सबकी आंखों से, इस इन्हदाम पे साया शब फिराक का है,
गया है जो भी उसे लौटते नहीं देखा, वाह, बहुत उम्दा। गया है जो भी उसे लौटते नहीं देखा, कि इससे आगे कबीला शबे शबे फिराक का है। तू इस किनारे खड़ा है, मैं उस किनारे पर, वाह। तू इस किनारे खड़ा है, मैं उस मैं उस किनारे किनारे पर पर। ये दरमियान का खित्ता शबे फिराक का है। बहुत अच्छे। हमारी मुंतकली के लिए जरूरी था, हमारी मुंतकिली के लिए ज़रूरी था, ये दश्त में जो बगोला शबे शबे फिराक का है। हाँ, समय लगेगा जरा शक्ल याद करने में, समय लगेगा ज़रा शक्ल याद करने में, मगर ये तय है कि लहजा शबे फिराक का है। क्या बात है। बहुत वाह, उम्दा। किसी से हम सफरी का कहें तो कैसे कैसे कहें, कहें, हमारे पाँव में रास्ता रास्ता शबे फिराक का है। क्या बहुत बात है। बहुत वाह, उम्दा। खुदा के लिए अब 27 साल दोबारा इंतज़ार मत करवाइएगा। हम लबो लहजे की बात कर रहे हैं। हमने बात ये की कि जैसे अशफाक के घराने का जिक्र हुआ, आप और आपके खानवादे में आपके हमसफ़र दोनों शायर हैं, आप उस्ताद भी हैं। हम जो इबलाग अपने बच्चों को दे रहे हैं, एक ज़माना था कि जहाँ लफ्ज़ यार बद तहज़ीबी के ज़ुमरे में आता था। आज बच्चे बाप को कहते हैं अब्बू यार। जी जी। सही बात। मेरे लिए बड़ा दिलचस्प सी बात हुई कि अब जो नई स्लैंग कॉलेज यूनिवर्सिटी की है, तो मेरी लाडली भांजी ने मुझसे कहा ब्रो चिल करें। हाँ क्या क्या नहीं। ठीक, तो जब ये इबलाग मुस्तामिल हो जाएगा और ख़वातीन ट्रेडिशनल गेट कीपर्स हैं, ट्रेडिशन की, सकाफ़त की, हमारी रिवायात की, वो गेट कीपिंग ख़त्म होती जा रही है। ऐसा। और अब ये इसे मॉडर्निटी में ये इसको आप स्टेटस के तौर पे लेते हैं कि अच्छा आप इस किस्म की ज़बान बोलते हैं, और बहुत से नाज़ेबा अल्फाज जो हैं वो बदमला कहे जाते हैं। रोज़मर्रा का हिस्सा बन गया। तो क्या होगा फिर कि कल का शायर ब्रो चिल करें काफिया रदीफ लिख रहा होगा। एक तो सूरत हाल आपने देख ही ली है, जी। जो आपने बताया भी, कोई जी। काफिया लतीफ़ आपने हाँ, प्रोग्राम खड़ा के करके शुरू में देंगे। बताया था। बस मैं एक लाइन का इजाफा मैं माफ़ी चाहता हूँ कि बस ये तय करेगा कि आपने ब्रो चिल किए को कितनी खूबसूरती से आपने शायरी में लाए हैं कि क्या उसमें शेरियत भरी है। इधर आ बेओ चागरे हाँ, अब ये ओ की तरह अगर इस्तेमाल कर लिया है तो फिर ये शेर का हिस्सा बन जाएगा। जी मैडम। देखिए, मैं तो बस ये कहना चाह रही थी कि आप कितने सेंसिटाइज्ड हैं इन चीज़ों के लिए, ये इस बात का तयन करती है। जैसे हमारा एक 3 साल का बच्चा है और हम उससे उर्दू में ही बात करते हैं, और जब उसका एडमिशन कराने गए तो उन खातून ने अंग्रेज़ी में उससे पूछा कि व्हाट इज़ योर नेम, तो हम घबरा गए कि ये अब क्या कहेगा। उसने कहा जोयान। तो हमें समझ आई कि ज़ाहिर है कि कार्टून्स और चीज़ें देखकर उसने थोड़ा समझ लिया है, लेकिन हमें कुछ लोगों ने मशवरा भी दिया कि आप इससे घर में उर्दू में बात ना करें, अंग्रेज़ी में बात करें ताकि ये ठीक रहे। तो हमने तो उनकी बात नहीं मानी और हम मानेंगे भी नहीं। हमारे माँ बाप ने हमसे उर्दू में बात की, हमारी नानी ने मुझसे हमेशा पंजाबी में बात की, और मुझे खुशी है कि मुझे दोनों ज़बानें आती हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को भी ये ज़ुबान आए। बल्कि मैं उसको लोरी भी सुनाती हूँ, मैं उसको कहानी सुनाने की कोशिश भी करती हूँ, और मेरी नानी एक पंजाबी में कुछ गा के हमें जगाने की कोशिश करती थी, मुझे और मेरी बड़ी बहन को। तो मैं ये भी कभी कभी उसको गाती हूँ, उसको गा के सुनाती हूँ, ताकि उसको पंजाबी के साथ भी वो जुड़त महसूस वो करे और उसके कानों में ये आवाज़ पड़ी हो। मेरी नानी को हीर याद थी और उनको बहुत सी चीज़ें याद थी और वो गुनगुनाती रहती थी, और मुझे लगता है कि मेरी तरबियत जो शेर की तरफ मेरा ध्यान है उसमें उनका भी हिस्सा है। मेरे वालिद का तो है ही, मेरे नाना का भी ज़ाहिर है कि एक असर मौजूद था। वो हमारे घर में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी, ख़ानदान की रिवायत आती है जी। और वो फिर बच्चों के लहजे में बोलती है। आपने जिक्र किया, मेरे साहबजादे अपने स्कूल में गए और उनसे एक दिन उनकी टीचर ने कहा कि अपने वालिदैन को लेके आइए, और उन्होंने मुझसे पूछा कि आप अपने घर में किस किस्म की ज़बान बोलते हैं। तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए कि खुदा मालूम साहबजादे ने क्या कहा। तो उन्होंने बताया कि हमने इनकी जगह बदल दी थी और ये अपने दोस्त से बहुत बातें किया करते थे, तो बहुत गुमसुम थे। तो हमने इनसे पूछा कि आप बहुत खामोश हैं, आप ठीक हैं,
تو بچے نے جو پہلی جماعت میں تھا اس نے جواب دیا ٹیچر میں نے سینے پہ پتھر رکھ لیا ہے. تو یہ دل کو اطمینان ہے کہ زبان ٹھیک ہے. خواتین و حضرات ہماری گفتگو جناب اشفاق ناصر اور محترمہ عنبرین سے نئے لہجے نئے انداز میں کیا بات کر رہے ہیں. اشفاق کا یہ کہنا کہ بات بھلے نئی کیجئے لیکن روایت سے جڑت رکھیے, اس لیے کہ روایت آپ کو یہ بتلائے گی کہ بات کرنے کا سلیقہ کیا ہے. عنبرین کا یہ کہنا کہ تہذیب آپ کے خون میں آپ کے خاندان سے آتی ہے, سو اس کے اوپر احساس کمتری نہیں احساس تفاخر رکھیے. کیا زبان آپ کی شخصیت کا آئینہ دار ہے, اس لیے کہ جناب امیر نے فرمایا کہ تمہارا کردار تمہاری زبان کی تہ کے نیچے ہے, اور جب شاعر کی زبان ہے تو پھر مصرع وہ ہو کہ جو انقلاب کا گیت بھی بنے, رومان کا پیغام بھی بنے, ہجر کا سامان بھی بنے, لیکن سلیقہ ایسا ہو کہ نگاہ کی شرم بھی بنے. کیا آج کا قلم یہ قرض ادا کر رہا ہے؟ زبان اردو کی آبرو اس قلم سے وابستہ ہے. سو ہماری دعا ہے کہ اشفاق اور عنبرین جیسے لہجے 10 اور 27 سالوں تک ہمیں ترسائیں نہیں, اس لیے کہ یہ درمیان کا وقفہ شب فراق کا ہے. آپ دونوں کی آمد کا بہت شکریہ. آج کی نشست بڑی دلربا رہی, اور اب اتنی اچھی نشست کے اختتام پہ اور اگر کوئی بہت دل کو لبھانے والا نغمہ نہ ہو تو پھر کیا بات رہی. میں ضرور. آپ اس طرح سے ہوش اڑایا نہ کیجیے, ہو آپ اس طرح سے ہوش اڑایا نہ کیجیے, یوں بن سنور کے سامنے آیا نہ کیجیے. ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو, کالی کالی زلفوں کے گندے نہ ڈالو. ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو, کالی کالی زلفوں کے گندے نہ ڈالو. ہمیں زندہ رہنے دو نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں, نہ چھیڑو ہم ستائے ہوئے ہیں. بہت زخم سینے پہ کھائے ہوئے ہیں. ستمگر ہو تم خوب پہچانتے ہیں, تمہاری اداؤں کو ہم جانتے ہیں. دغاباز ہو تم ستم ڈھانے والے, فریب محبت میں الجھانے والے. یہ رنگی کہانی تمہیں کو مبارک, تمہاری جوانی تمہیں کو مبارک. ہماری طرف سے نگاہیں ہٹا لو, ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو.
پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی سنبھالو ذرا اپنا آنچل گلابی دکھاؤ نہ ہنس ہنس کے آنکھیں نابی سلوک ان کا دنیا میں اچھا نہیں ہے حسینوں پہ ہم کو بھروسہ نہیں ہے اٹھاتے ہیں نظریں تو گرتی ہے بجلی ادا جو بھی نکلی قیامت ہے نکلی جہاں تم نے چہرے پہ آنچل اٹھایا وہیں اہل دل کو تماشا بنایا خدا کے لیے ہم پہ ڈورے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے دو اے حسن والو کالی کالی زلفوں کے پھندے نہ ڈالو ہمیں زندہ رہنے